السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو ہے شرعی پردے کا کیا حکم ہے، کیا معاملات ہے، اور عورت کے ستر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ سر سے لے کے یعنی سر کے بالوں سے لے کے اور نیچے پاؤں تک جو ہے عورت کے ستر میں شامل ہوتے ہیں. تو فقہ حناف کے درمیان یہ موقف پایا جاتا ہے کہ ہاتھ اور چہرے کا جو ہے پردہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے کچھ وہ دلائل پیش کرتے ہیں اپنے ان کے جو پاس جو دلائل موجود ہیں وہ دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے کہ چہرے کا جو ہے پردہ نہیں ہے. اور اس طرح کے جو آپ کو پتہ ہے لبرل ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا جو ہے پردے کا حکم نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چہرے کے پردے کا بھی حکم ہے. تو آگے آپ کے سامنے میں علماء کرام کی رائے بھی رکھوں گا، تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے اس حوالے سے. تو سب سے پہلا موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون ہے، تقریباً 45 ایئرز ان کی عمر ہے، اور پہلے وہ نقاب کرتی رہی ہیں. اب ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ اب تم اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہو تو اب اگر تم چہرہ نہ بھی ڈھکو تو کیا مسئلہ ہے. تو عورت اس کی بات مانے یا نہ مانے. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو آخر یہ سوجھی کیا ہے، جب 45 سال تک عالم جوانی میں اور پھر اس کے بعد یہ ادھیڑ عمری شروع ہو گئی ہے خاتون کی، جب یہ نقاب کی اجازت دے دی ہے تو اب کیوں آخری وقت میں آ کر اس قسم کا مطالبہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے مطلب کوئی کراہت ان کی طرف متوجہ ہو. اگرچہ یہ مسئلہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں اہل علم بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہے گی، اور عوام کو ان سے جا کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے. اس میں دو اشارے ہیں کہ کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے اہل علم سے رجوع کرو. اور یہ بھی ہوگا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے سابقہ مسائل میں تھوڑی تھوڑی چینج آتی رہے گی، وہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو اہل علم کے پاس جانا پڑے گا. چنانچہ علماء متقدمین تو اسی بات کے قائل رہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، لیکن جیسے جیسے فتن زمانہ زیادہ ہوئے آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، پھر وسوسے آتے ہیں، پھر انسان کوئی اور کام کرتا ہے. لہٰذا پھر علماء متاخرین یعنی بعد والے علماء نے اسی بات کا فتویٰ دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بلا عذر نہ کھولیں. شریعت دوستو آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چہرے کو ستر میں شامل نہیں کیا عورت کے چہرے کو. تو اس حوالے سے ان کے پاس کوئی دلائل تو انہوں نے رکھے نہیں ہیں آپ کے سامنے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے اکابرین اور علماء کرام نے یہ موقف پیش کیا ہے کہ جو ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے عورت کے، اور جو ہر دور کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، ہر دور کے لحاظ سے اہل علم سے پتہ کیا جائے گا. اور آج کے دور میں جو ہے خرافات زیادہ ہیں تو اس لیے چہرے کا پردے کا جو ہے کچھ علماء کرام ان کے موقف یہ پیش کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. بہرحال ان کا یہ موقف ہے فقہ حناف کے درمیان کہ جو ہے عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور ان کے پرانے جو اکابرین ہیں انہوں نے یہی جو ہے فتوے وغیرہ دیے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. محرم کا مر سے جسم کے کس حصے کا پردہ ہے اور نامحرم مر سے جسم. عورت کا چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ نامحرم سے پورے جسم کا پردہ ہے. چہرے کا پردہ ہے فتنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہو، کیونکہ اس میں فتنہ ہے تو اس کا پردہ فتنے کی وجہ سے، اور باقی جسم کا پردہ فتنے نہیں، وہ ویسا ہی ہے چاہے فتنہ ہو یا. یعنی عورت پر اسکارف لینا مرد کے سامنے اپنے پورے جسم کو چھپانا سوائے ہاتھ اور سوائے چہرے کے، یہ تو چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے. باقی چہرہ چھپانا بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فتنہ نہ ہو تو فرض نہیں ہے. بعد میں جتنے بھی فقہائے حنفیہ ہیں ان سب نے اس پہ فتویٰ دیا ہے چونکہ فتنہ ہے جوان عورت کے لیے زمانے میں، لہذا اس زمانے میں عورت کو پردے کا حکم دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جوان عورت پر بہرحال چہرہ اس کو چھپانا فرض ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خواتین بالکل ہی ماڈرن ہیں، بالکل ہی دین کی طرف نہیں آتی، تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان کو پورا وہ جسم چھپانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پورا پردہ نہیں کرتی تو کم از کم اتنا کر لیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلی ہو، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا ہو. تو
क्योंकि चेहरे के पर्दे में बहरहाल एक इख्तलाफ भी है और उसकी वजह भी फितना है, तो यानी और इसकी उम्मीद है कि जब इतना पर्दा होगा तो बाकी भी इंशाल्लाह समझ में, क्योंकि एकदम से हर चीज़ हर एक की समझ में नहीं आती। अब अंग्रेज़ औरत को बोलो आप पूरी तंबू पहन के आ जाओ, शामियाना पहन के, वो बेचारी जो क्लबों में डांस करने वाली वो फिर नहीं। तो इसलिए कोई भी फ़कीह है उसको चाहिए कि लोगों को मसाइल बताए, उनकी जो मेंटल अप्रोच है ना उस हिसाब से। तो जो अदाकाराएँ हैं, फनकाराएँ हैं, ये बिल्कुल ही मॉडर्न खवातीन है, उनको जब हम मसला बताते हैं तो स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है। उसको हम कहते हैं कि चेहरा और हथेली खोल सकती हो, बाकी जिस्म छुपाएं। चेहरे के सो दोस्तों, आपके सामने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ है कि चेहरे का जो है पर्दा जो है फ़र्ज़ नहीं है, वो इन्होंने बता दिया। इमाम अबू हनीफ़ा का ये मौक़िफ़ है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि आजकल तो जो है फ़ितने का अंदेशा है, तो इसलिए जो है पर्दा करना चाहिए, और जहाँ फ़ितने का अंदेशा ना हो वहाँ पे पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। ये आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। पर्दे के संबंध में बहुत ज़्यादा हदीसें हैं। हज़रत उम्मे खल्लाद एक खातून थी, उनका बेटा एक ग़ज़वे में शहीद हो गया। वो उसके बारे में कुछ पूछने के लिए हुजूर के पास आई, सहाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने नकाब डाला हुआ था, मुंतक़िबतुन। नकाब का लफ्ज़ भी हदीस में मौजूद है, और ये लोग कहते हैं नकाब तो जो है ये बाद की पैदावार है, ये लफ्ज़ कोई है ही नहीं। हिजाब का लफ्ज़ कुरान में है, जलबाब का लफ्ज़ कुरान में है, खिमार का जिक्र कुरान में है, और ये मुंतक़िबतुन नकाब डाली। लोगों ने कहा अजीब औरत है ये, इसका बच्चा शहीद हो गया है, मतलब ये कि सख्त सदमे की कैफियत है, और इस वक्त भी इसने नकाब डाली हुई है। तो उन्होंने जवाब दिया, इन अर्ज़ो इब्नी ला अर्ज़ो हयाई, मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है। ये है हमारी तहजीब, ये हमारा तमद्दुन, इसी पर हमारे घर बनते थे। ये तो मगरबी तहजीब ने आकर हमारे घर बनाए, आगे से खुला पीछे से खुला, खुला ही खुला। हमारे घर चार दीवारी होगा, आज चार दीवारी है कहां? चार दीवारी के अंदर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन, दरमियान में सेन, दूर से कहीं कोई निगाह पड़ सकती है तो पड़ सकती है, आस पास से नहीं। और डेवड़ी और मर्दाना अलहदा, कम से कम बैठक तो अलहदा हो, वरना ये कि मर्दाना पूरा, उनके लिए कोई गुसल खाना वगैरह भी, ये हमारी तहजीब थी। अली भाई आपने कहा। सो दोस्तों, आपके सामने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं इसके ऊपर कि चेहरे का पर्दा जो है वाजिब है, और इस हवाले से कुरान की आयतें भी मिलती हैं। कुरान के अंदर हिजाब का, पर्दे का बहुत सारे अल्फाज हैं, और आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। शेख अलबानी ने दूसरों के लिए इजाज़त दी है कि ख़वातीन के चेहरे को ढांपना लाजमी नहीं। शेख अलबानी की ख़वातीन को चेहरे को खोलने की इजाज़त किस हदीस पर मबनी है? बराए करम हदीस का हवाला दे दें। देखें, वो सुन्नत अबी दाऊद की एक हदीस है ना, वो बड़ी कमज़ोर रवायत है कि औरत जब बालिगा हो जाए तो सवाए उसके चेहरे की टिकिया के और हाथों के कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए गैर महरम के सामने। ये हदीस मिशकात की दूसरी जिल्द में भी आपको किताबुन निकाह वाले चैप्टर में मिल जाएगी। ये सिर्फ ज़ईफ़ नहीं है, बल्कि इस पे शेख ज़ुबैर साहब ने लिखा है ये जुल्मात में डूबी हुई है। इसमें कई एक है, मुनक़ते भी है, मुदल्लिस का इशू भी है, ज़ईफ़ रावी भी है, कई एक इसके अंदर सुकम पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से वो ये समझते हैं। तो हम तो इस मौक़िफ़ को सही नहीं समझते, कुरान की रूह में ये बैठता ही नहीं है। सबसे पहले तो कुरान में आए ना कि कुरान पाक का मिजाज क्या है। सूरह अन-नूर में आए कि औरत के जेवर की जो आवाज़ है ये भी बाहर सुनाई ना दे जीनत की चीज़ों में। तो जो अल्लाह ये मिजाज रखता है कि वो औरत के जेवर की आवाज़ किसी गैर महरम को सुनवाना नहीं चाहता कि कहीं उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट ना हो, वो चेहरा जो सबसे बड़ी जीनत की जगह है उसको खोलने की इजाज़त देगा। अच्छा, फिर उम्मत के लिए रोल मॉडल तो उम्महातुल मोमिनीन है, नबी इस्लाम की बेटियां हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जो हदीस इफ्क अम्मा आयशा पे जो तोहमत लगाई गई थी मुनाफिकीन की जानिब से, काफी लंबी हदीस है। उसमें जो अम्मा आयशा पीछे रह गई थी तो वो फिर उसी जगह पे बैठ गई ताकि वो काफले वाले वापस एक साहबी को हुजूर वहां पे छोड़ते थे कि अगर कोई सामान रह गया तो वो समेट के ले आए। इतना बड़ा काफला है तो जाहिर है ओवरलुक हो जाती। तो अम्मा आयशा वहीं पे बैठ गई ताकि वो शख्स देख ले। तो वो कहती हैं इस दौरान मुझे ऊँग आ गई और मेरे चेहरे से जो घूंघट है वो हट गया। तो
उस सहाबी की नजर मुझ पे पड़ी तो उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऊंची आवाज में जब पढ़ा तो मैंने फौरन से चेहरे का पर्दा कर लिया, और अम्मा आयशा के अल्फाज हैं कि उसने मुझे इसलिए पहचान लिया कि उसने आयत पर्दा नाजिल होने से पहले मुझे देखा हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयत पर्दा के बाद उम्महातुल मोमिनीन पर्दा करती थी। अब ये वो हदीस है जिसे गामदी साहब भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये पर्दा करना सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन की खुसूसियत है। भाई उम्महातुल मोमिनीन तो हमारी माएँ हैं, उसके बावजूद पर्दा कर रही हैं, तो बाकी तो शायद कोई नहीं। सही। उनके लिए तो किसी और मर्द के साथ निकाह करना भी हराम है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो इस तरह की कहानियां ना करवाएं कि जो फिर एक्सेप्टेबिलिटी जिन्हें नहीं मिलती। सही। तो चेहरे का पर्दा है, हम ये इस किस्म के जो लोग चेहरे का पर्दा खोलने की, मैं तो कहता हूँ अब ये पुरफितन दौर में अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके नज़दीक नहीं है तो इज्तिहादन के ये काम है, उनमें इनको आप शामिल कर लें। ये बहुत बड़ा फितना है इस वक्त औरत का इस तरीके से चेहरा खोलना, उम्मत को बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया इस चीज़ ने। सो दोस्तों, आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौर के लिहाज से जो है औरत का चेहरा खुला होना एक बहुत बड़ा फितना है, क्योंकि इंसान जो है मर्द हजरात जो है एट्रैक्टिव होते हैं चेहरे से, और फिर खुराफात के दरवाज़े खुलते हैं, और फिर जो है इस तरह के मामलात खुलते चले जाते हैं और मामलात आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर ये है पर्दे का शरई हुक्म है, और कुरान के अंदर आयत भी मौजूद है कि जब भी औरतों के लिए हुक्म है कि बाहर निकलें तो अपने घूंघट निकाल लिया करें, मतलब पर्दा कर लिया करें। और हदीसें भी आपके सामने इंजीनियर साहब ने आपको बता दी हैं कि इस हवाले से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से भी हदीस आपके सामने रख दी है। आगे चलते हैं लास्ट मौक़िफ़ की तरफ। एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। मामले में मेरे पास कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है जिसमें चेहरे को खुला रखने की इजाज़त दी गई हो। ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ बातें जो है बहुत सारे लोग हवाले देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पस मंज़र होता है, और उस पस मंज़र को भी समझना ज़रूरी है। जैसा कि ईदगाह में एक औरत उठी जिसके चेहरे पर निशान था, तो हम जानते हैं नमाज के लिए जब औरतें आई तो चेहरा ढाकना नहीं सकती, खुला रखना पड़ेगा, तो ईदगाह का मसला हो गया। वो एक आम मसला नहीं कि औरतें बाजार में सहाबियात घूमती और उनके चेहरे पर निशान होता और सहाबा उनको देखते। ठीक है, तो मेरे नज़दीक कोई ऐसा वाक़या नहीं है या कोई ऐसी दलील नहीं है जिस दलील के मुताबिक औरत के लिए चेहरा खुला रखना जायज़ हो। मेरे नज़दीक कोई दलील नहीं है, ठीक है, कि उसका चेहरा सिवाय वो जब हज के लिए जाएंगी तो तब उसे खुला रखना है। मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम हज के लिए जाती और चेहरा खुला रखती, जब काफ़िले आते तो कभी कभी ढाक लेती और फिर खोल देती। तो इससे पता चला खुला रखना उसकी असल है, इसलिए कि खुला रहता तो ढकती, वरना अगर ढाकना असल होता तो ढाक के ही चलती, फिर काफिले आए और काफिले जाए। वहाँ के अलावा कोई दलील मेरे पास मौजूद नहीं है, या मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी आलिम का या किसी मसलक का ये मामला हो कि उसने ये जवाज दिया हो कि चेहरा खुला। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि चेहरा तो खूबसूरती की अलामत है और वो मरकज है कशिश का, और उसको ढाकना तो बदर्जे औला जरूरी है, इसलिए कि उसी की वजह से सारे फितने शुरू होते हैं। कभी भी कोई इंसान ये नहीं बोल सकता है कि वो औरत क्या खूबसूरत पहन है यार, फिदा हो गया बस, कोई नहीं बोलता, किसी की नजर भी नहीं होती है। किसी भी इंसान की नजर किसी के लिए पड़ेंगी तो कहाँ जाती है, सीधा चेहरे पर उसके। तो चेहरा कशिश का मरकज है और इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, सहाबियात से यही अमल मिलता है, सहाबा ने अपनी औरतों को ऐसे ही पर्दा कराया। अब कोई इंसान ये कहता है तो उसके पास उसकी दलील हो। मेरे नज़दीक तो मैं कहूँगा चेहरा ढकना औरत के पर्दे का हिस्सा वाजिब एंड ज़रूरी है, उसको ये करना है। अगर वो नहीं करेगी तो बहुत सारे फितनों में वो पड़ जाएंगी, मुलविस होंगी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें हो सकती है दुनिया और आखिरत के एतबार से। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का और स्कॉलर्स का आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस हवाले से पर्दे का जो शरई हुक्म है औरत के लिए वो ये है कि सर के बालों से लेकर जो है टखनों तक का ये हुक्म है, और पैर के नाखून तक ये हुक्म है। और इस हवाले से उसने हाथ, मुंह और सारे जो है पर्दे के अंदर रखना। ये नहीं है कि आपने मुंह खुला रखना है, आजकल के दौर के हिसाब से जो है फितने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चेहरे का भी पर्दा करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे ही बग़ैर पर्दे के बाहर निकल जाती हैं,
اور اس کے اندر جو ہے خرافات میں جو ہے یہ لوگ پڑ جاتے ہیں اور مرد حضرات جو ہے خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے شرمندگی پیدا ہوتی ہے. عورتوں کے اندر جو ہے یہ معاملات زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور لڑکوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں. تو اگر ان کے اندر یہ معاملہ بھی نہ ہو کہ وہ راغب نہیں کرنا چاہتی ہوں, پھر بھی وہ ایسے ہی نکل جاتی ہیں, تو لوگ ان کو دیکھتے تو ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, گور گور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے پردے کے اندر نکلیں تاکہ آپ محفوظ بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کے اندر رہیں, کیونکہ حکم کو بجا لانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کے اندر آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو